Hello students, today in part 5 of unit 12 of standard 12, I Kinnari Dave is going to explain you about the preparation of ketone. Till the part 4 we have studied the preparation of aldehyde and ketone both, then only the preparation of aldehyde, and today I am going to explain you only the preparation of ketone. From that some of the preparation we have studied even in the preparation of aldehyde also, but the name some reagent is different. There we have used and here we are using the different reagent. Then same way one other method which I am going to explain you, that also we have studied under the name of the Federal Kraft acylation. That also we have studied, that also we are going to use for the preparation of ketone. And then I am going to explain you about the physical properties of aldehyde and ketone. Generally student physical properties में से क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पूछा जाता है, एंड मोस्टली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQs the questions are asked to make you confused, so you have to just keep the concept clear for the physical properties of the organic compound. Then you can answer any of the MCQ also, or in the board exam for 2-mark question also. So let us start today's topic, unit 12 part 5 of aldehyde phenol sorry student, aldehyde, ketone and carboxylic acid, standard 12. Now here we are going to study the preparation of ketone. In this first preparation of ketone, we are going to study from this acid chloride. First preparation is from acid chloride. Acid chloride आप लोगों को याद है हमने aldehyde की preparation में भी use किया था. What is the formula of acid chloride, student? Correct, very good. So first preparation from acid chloride, formula is R. Here हम कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, और दूसरी बाजू हमारे पास में है क्लोराइड. तो दिस इज द एसिड क्लोराइड. नाउ बिफोर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस, we have to use the Grignard reagent, and this Grignard reagent is very much useful to convert this acid chloride into the ketone. So here I am writing first R MgX. When this RMgX means Grignard reagent is to be react with cadmium chloride CdCl2. When it react with cadmium chloride, we get R2CD, means here we have to take 2 moles of Grignard reagent, then we get R2CD, and another that whatever is remaining here, this MgX, and here we have the Cl, so that is remaining plus MgX and Cl. So here we have the 2 mole of. Now this R2CD which we are going to use with the acid chloride for the preparation of ketone. तो यहाँ से हमने R2CD का यहाँ रिएक्शन करवाया एसिड क्लोराइड के साइड, R2CD gives. Now कैडमियम क्लोराइड यहाँ पर हमारे पास में निकल जाएगा, और RC डबल बॉन्ड O ये है, उसके साथ में यहाँ से जो R है वो अटैच हो जाएगा. सो हियर वी हैव टू टेक दिस R. ये R के साथ में हमारे साथ में ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और फिर ये जो हमारे पास में है R. So here we have to take, we will get the 2 moles of R, and then we have to go for this. So this is the preparation of
ketone from acid chloride. This is very simple preparation students. I think यहाँ पर आप R की वैल्यू अलग अलग लेके आप एसिटोफिनोन है या जो भी हमें दिया है वो फाइंड आउट कर सकते हो. बट यस स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ बेसिक प्रिपरेशन इसीलिए बता रही हूँ कि आप उससे अच्छी तरह से याद रख सकते हो. आप R और यहाँ पर R वो दोनों कोई भी अपने आप ले सकते हो, या तो जो एग्जाम में पूछा है उस तरफ से आप उसकी प्रिपरेशन करके कीटोन बना सकते हो. Now next preparation of ketone is from nitrile. Nitrile also I think you have remembered that we have studied for the aldehyde also. Preparation of aldehyde भी हमने nitrile में से किया था. But I think you remember that we have used the diable H. मुझे लगता है कि आपको ये याद ही होगा. So here we are taking the nitrile, but in the place of diable H we are going to take it here as a Grignard reagent. So let us start the second preparation of ketone from nitrile. So second preparation is from nitrile. Nitrile means you know that R C triple bond N. This is your nitrile. जो हमने अल्डिहाइड की प्रिपरेशन में यहाँ पर उसका रिएक्शन डायबल H के साथ करवाया था, यहाँ हम उसका रिएक्शन करते हैं ग्रिंगार्ड रिएजेंट के साथ में. सो नाउ हियर प्लस R MgX. Now student, here what happened? Here you have the carbon and nitrogen. So you can see that here R, this R is more electropositive, but as compared to magnesium it is less positive. Same way here carbon and this triple bond. So what happens over here? This bond breaks. Now this R come towards the carbon, and here what happened? Actually student, this intermediate is not at all asked any time, because according to the new syllabus or new terms of the CBSE NCERT, ये कंडीशन में इंटरमीडिएट के बारे में हमें कुछ लिखना नहीं होता है. But then also how the preparation of ketone occurs, that I am explaining you. So अब यहाँ पर से ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से R यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ. अब होगा क्या? ये R फिर C, ये R यहाँ आपके पास में आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, और ये जो पाई बॉन्ड था उसका ये इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन के पास में और नेगेटिव चार्ज आ गया, और साथ में ये जो है वो आपका जुड़ा MgX. So this is just a intermediate. Now what is to be done? You have to go for the hydrolysis of this. So the next process is hydrolysis. So H3O plus. By doing the hydrolysis, directly we get over here ketone. R C double bond O R. Simple process from nitrile to ketone by using Grignard reagent. Acid chloride by using Grignard reagent with cadmium chloride, and that R2CD is used with the acid chloride and you get the ketone. So this is also very important. Now very important preparation, वैसे आप लोग 11th में भी पढ़ के आए हो, और इसमें से ये जो है वो काफ़ी टाइम कन्वर्शन में भी पूछा जाता है. तो इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स. उसमें आपको मुझे पता है कि टॉल्यूइन की प्रिपरेशन, टॉल्यूइन के कन्वर्शंस तो बहुत सारे पढ़े हुए हैं हमने. तो अब ये है आपका फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन, और
benzene or benzene derivatives preparation of ketone. So here we can write from benzene और उसके derivatives or we can say that Federal-Kraft acylation. Federal-Kraft acylation. This is the preparation of ketone. This is the last preparation. Only three way we can prepare the ketone. Only these are the third method. So first of all, as I said, from the benzene, and then we'll go with the benzene derivative. So benzene का हम यहाँ पर use करेंगे उसका जो हमारे साथ में reaction में हमें लेना है वो हम लेते हैं benzene plus CH3 RCOCl means मिथाइल या तो एसिड क्लोराइड जो यहाँ पर हमने लिया RCOCl उसकी जगह में R के बदले में मैंने यहाँ पर CH3 रखा है. तो ये हम लेके आगे काम करते हैं. अब ये फेडरल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर उसका जो हमारा लुईस एसिड है वो है AlCl3. Acquires AlCl3 which behave as a लुईस एसिड. अब ये जो है हमें क्या करेगा, यहाँ पर से जो हमारा बेंजीन है उसके ऊपर सीधा CH3CO अटैच हो जाएगा, मतलब ये एसीटोफिनोन बना देगा हमारा, और HCl यहाँ वो निकल जाएगा. सो दिस इज द सिंपल प्रिपरेशन of aromatic phenol or aromatic ketone COCH3. This is named as a acetophenone. This is simple preparation of ketone from benzene to acylation by using AlCl3. Here AlCl3 acquires is behave as a Lewis acid. नाउ उसका डेरिवेटिव्स के बारे में जो मैंने बात किया, तो विल टेक द अनदर एग्जांपल फॉर दैट. एंड डेरिवेटिव्स में मैंने बताया टोल्यूइन इज द वेरी गुड एग्जांपल. सो हियर विल टेक द टोल्यूइन. फॉर दैट द असाइलेशन ले रहे हैं, तो हियर विल टेक द एसिड क्लोराइड सेम. सो CH3 COOCl सेम AlCl3 acquires HCl माइनस हो जाएगा. अब ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो पैरा प्रोडक्ट रहेगी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ आपका मेन ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो ये जो आपका ग्रुप है वो ग्रुप पैरा पोजीशन पे आएगा COCH3. तो यहाँ जो प्रोडक्ट रहेगी वो आपकी रहेगी पैरा मिथाइल एसिटोफिनोन. तो ये आपकी प्रोडक्ट रहेगी. इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसके ऊपर से क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो वैसे मैंने 10th चैप्टर के अंदर भी समझाया था कि पैरा प्रोडक्ट के लिए काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं. तो वो सब आप यहाँ एक दूसरे के साथ में लिंक करके भी समझ सकते हो. So I hope so this 3 preparation is very much clear to you. Now we'll go with the physical properties of aldehyde and ketone. As we know, physical properties we are generally study only about the physical state, then melting point, boiling point, and then solubility. So here also, and the smell also, because as aldehyde and ketone are having the good smell, they are well known for their smell, and that's why only mostly aldehyde and ketone natural products
are useful for the perfume also. So let us start the today's second topic, physical properties of aldehyde and ketone. Now first of all we are going to study about the states. Physical state जो होता है उसके बारे में हम study करते हैं. So physical properties. First we are going to study about कौन से फॉर्म में होता है, स्टेट्स के लिए लेते हैं. तो जो भी मतलब कि छोटे से छोटा जो हमारा ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन का, तो वो हमारा छोटे से छोटा जो ग्रुप है वो होता है, जैसे हम उसे पता है कि वो मिथेनॉल है. तो मिथेनॉल हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है. तो छोटा कार्बन मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है एल्डिहाइड और कीटोन का, तो वो गैसियस फॉर्म में होता है. तो फर्स्ट वी आर राइटिंग जस्ट स्मॉलेस्ट. मिथेनॉल मीन स्मॉलेस्ट में हमारे पास में मिथेनॉल है, मिथेनॉल सॉरी. सो स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप aldehyde is in gaseous form. Then उससे 2 या 3 कार्बन तक, मतलब कि अगर हमारे R की नंबर हम 2 या 3 से ज्यादा करते हैं तब तक वो लिक्विड वेपर फॉर्म में रहता है, वेपर लिक्विड फॉर्म में होता है. सो और सबसे हाईएस्ट फॉर्म जैसे हाईएस्ट होता है वो या तो सॉलिड फॉर्म में होता है या तो लिक्विड फॉर्म में होता है. मीन्स आपको यही याद रखना है, बीच वाला याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट दैट. द स्मॉलेस्ट वी आर नोइंग दैट द स्मॉलेस्ट इज मिथेनॉल. तो मिथेनॉल इज इन द गैसियस फॉर्म, वाइल जो हाईएस्ट होता है वो गैसियस या तो सॉलिड या तो लिक्विड फॉर्म में होता है. बीच वाले जो फॉर्म्स होते हैं वो मोस्टली वेपर फेज में रहते हैं. सो दैट वी हैव टू रिमेंबर. दिस इज ओनली डिस्कशन अबाउट द फिजिकल स्टेट. Now we'll go with the next property of this, that is known as the boiling point. As we know, the boiling point is totally depends on the molecular mass, and according to that, as the number of R group or number of carbon increase, the molecular mass increase and then boiling point increase. So here organic के जो हमारे पास में कंपाउंड है उसके साथ में किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही है कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. सो दैट टॉपिक वी आर नॉट कवरिंग इन द सेम वे बट इन द डिफरेंट वे. सो द सेकेंड वन इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड वन इज अ बॉइलिंग पॉइंट. सो सबसे ज्यादा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का. सो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में उसके बाद में जो उससे थोड़ा सा कम होता है वो होता है अल्कोहल का. अब यहाँ पर भी हमारे पास में H बॉन्ड इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ताकत की जरूरत होती है. तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में सेकेंड नंबर पे होता है अल्कोहल. अल्कोहल के बाद में H बॉन्ड में हमारे पास में आता है कीटोन. कीटोन उसके बाद में हमारे पास में आता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद में हमारे पास में आता है ईथर. एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बाद में आता है ईथर, और ईथर के बाद लास्ट में मतलब कि हाइड्रोकार्बन के जिसके पास में कोई H बॉन्ड नहीं है, और साथ साथ में अगर वो भी देखें तो वो नॉन पोलर भी है, तो सबसे कम रहता है हाइड्रोकार्बन का. सो हाइड्रोकार्बन का कम है, क्यों?
तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि उसके अंदर जो है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने की वजह से वीक वैंडरवाल फोर्सेस है उसके अंदर, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोकार्बन का सबसे कम रहेगा. सो दैट दिस सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर, एंड द रीजन एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बिकॉज वीक वैंडरवाल फोर्स हियर, weak van der Waal force. Why weak van der Waal force? Because it is a non-polar. Because of non-polar nature. Okay students, so ये हाइड्रोकार्बन के बाद में बात हो गई. अब जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सब जो है उसके पास में H बॉन्ड है और वो सब पोलर भी है, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे हाईएस्ट क्यों है वो भी हम समझ लेते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास में ये है RC डबल बॉन्ड O और OH. अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो ऑक्सीजन, मतलब यहाँ देखो कि ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव. तो इस तरह से अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर उसके पास में पोलैरिटी जो है वो उसकी खुद की ही बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे हाईएस्ट रहता है. सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. नाउ विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज the solubility. Solubility is also depends on the H bond. As we know कि उसके पास में जितना पोलर मॉलिक्यूल, मतलब जितना H2O वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर अल्डिहाइड एंड कीटोन भी पोलर है, तो एक दूसरे के साथ में वो इंटर H बॉन्ड बनाते हैं, इंट्रा और इंटर दोनों H बॉन्ड बनाते हैं. तो इसीलिए अगर हम देखें तो जो अल्डिहाइड एंड कीटोन है वो पानी में सॉल्यूबल है, पर यहाँ ये बात भी है कि पानी में सॉल्यूबल है पर छोटा से बड़े कार्बन तक जाएंगे, मतलब अगर हम R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. ये बात भी ध्यान में रखनी है. क्यों? उसका मतलब ये है कि मास बढ़ेगा. एज नंबर ऑफ R इंक्रीज, the mass, molecular mass also of aldehyde and ketone increase, and that's why solubility decrease. So solubility के लिए the next point for our this physical state is student I am writing over here. So the next property for this is solubility. So as I said, this all the solubility is due to the H bond. Here I had already explained you. So H bond present है, पानी के अंदर भी present है, इसके साथ में भी H bond present है. तो अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो पानी में soluble है, साथ में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी soluble है, क्योंकि आपको मालूम है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी पोलर मॉलिक्यूल है. सो अल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehyde and ketone soluble in water as well as organic solvent due to H bond. Organic solvent, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों और बट, ये भी मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. एंड द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ इट इज अ स्मेल. एज आई सेड, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली आइडेंटिफाई और दे आर वेल नोन फॉर देयर स्मेल ओनली. बट इसमें भी सबसे जो छोटा वाला हमारा अल्डिहाइड है, मतलब जो हमारा मिथेनॉल है, वो उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल के लिए, उसकी बदबू मतलब तीव्र वास जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए वो आइडेंटिफाई है. अगर हमें लैब के अंदर ये दिया गया है तो हम उसकी स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारे पास में जो
कंपाउंड दिया है, वो गिवन कंपाउंड आर द मिथेनॉल। तो स्मेल से एल्डिहाइड एंड कीटोन आर, उसमें सबसे छोटा जो है वो अपनी पिक्यूलर स्मेल के लिए पहचाना जाता है, और वो स्मेल होती है उसकी तीव्र स्मेल, तीव्र वास, ठीक है। तो वो हो गया मिथेनॉल के लिए। जैसे जैसे अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है, वो पिक्यूलर स्मेल स्वीट स्मेल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसकी स्मेल जो है वो स्वीट स्मेल, मतलब जिसको हम अच्छी खुशबू कह सकते हैं, उसमें वो कन्वर्ट होता है। और इसकी वजह से ये जो है वो परफ्यूम बनाने के लिए इंडस्ट्री में उपयोग होता है। सो स्मेल के लिए भी मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट ये बात में भी ध्यान रखोगे कि क्वेश्चंस मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में से पूछा जाता है, एंड मोस्टली यू आर थिंकिंग कि फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्या होगा है, तो आप इग्नोर करोगे तो हो सकता है कि एमसीक्यू के लिए कहीं ना कहीं आपकी छूट हो जाए। बट डोंट इग्नोर एनीथिंग, एवरीथिंग इज important. So keep in your mind and study all the three preparation of ketone which I have explained you, and in the next topic means next video I am going to explain you about the chemical properties of aldehyde and ketone. Thank you, students.